नमस्कार, मैं ब्यूटी रॉय फ्रॉम जेएमसी डिपार्टमेंट ऑफ जीजीआई। आप सभी का स्वागत है हमारे टॉक शो मुलाकात के इस नए एपिसोड में, जहां हम हमेशा की तरह आपको नए नामचीन हस्तियों से रूबरू करवाते रहते हैं। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं जीजीआई में लगे 5 दिनों के एनसीसी कैंप में, जहां खास तौर पर पहुंचे हैं 19 पंजाब बटालियन एनसीसी लुधियाना के एडमिन ऑफिसर कर्नल मनजीत सिंह टाडा जी। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आइए बात करते हैं। वेलकम सर। थैंक यू रुचि। सर, एक्चुअली नाउ डेज़ वी आर सीन टुडे, आज की जो जनरेशन है वो एनसीसी के बारे में उतनी अवेयर नहीं है जितनी होनी चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है कि एनसीसी होती क्या है, एनसीसी में क्या क्या स्कोप है। सो प्लीज़ सर, आप कुछ इन्फॉर्मेशन दें एनसीसी के बारे में। NCC beta basically stands for National Cadet Corps. It was created before our partition by the Britishers, and it was supposed to be the second layer of defense after the army. So it is trained as per the army guidelines by the army. So they are good and proficient on firing. They can handle traffic management, they can handle social activities, they can even handle nowadays disaster management, which is a new concept which has come in. So you will find NCC cadets everywhere. And tomorrow, God forsake, something happens, you will find them even facing the enemy with all guts and glory. Apart from that, NCC cadets who graduate from the colleges and all with C certificate, they are given special vacancies in the armed forces and all the forces which are there wearing the uniform, be it police forces in South India and most of the other states. They are also having reservation of 5% for the professional colleges, be it engineering, be it medical and other such MBAs and other such colleges. So NCC gives you that edge. Also, in case you look around, you keep your eyes and ears open, you will find them much more disciplined than the normal students. That that pride in self is awakened by the NCC. You will not find them littering around. You will see them that they are disciplining the other students also. So this is the edge which they get. Anything else? Sir, as we can say that discipline and unity is more important in NCC. Definitely. Okay, sir, but one thing I want to ask you, if any students who wants to join NCC, but he is not interested in Indian Army, he is only joined for learning discipline and unity and how to face our surroundings, situations and problems. So it's maybe right or wrong? Definitely, as I told you earlier also, it gives you an edge. It changes your walking style. It awakens your conscience. We are not telling anybody to join the armed forces. We are just training them. So any training for that matter. In case you are running in the morning doesn't mean that you will become an athlete. So a main aim is to instill that discipline. So once that conscience is awakened, you become an asset to the society. You stop people from littering around. You stop people from doing corruption. You stop people because your conscience is awakened. So we are not training them for army and all. That is, in case they want to join army, it gives an edge. But definitely you become a good citizen. That is also part of the training. You will see them now, even now they have gone for tree plantation, which is one of their subjects. Yes. So they are helping to build a better environment, a better society to live in. Yes.
So one must join. I'll recommend that each and every student should join NCC. Sir, and I want to ask one question more. Sir, in your personal view and your life memories related to why are you join Indian Army and how are you passionate with that? To be very frank with you, initially I was not very passionate. Just because my friends joined, so I also joined. Okay. Initially, yes. But once in the army, once I started practicing, training with my comrades, with my colleagues, then yes, I became very passionate about it. It gives you an edge, it gives you comradeship. This is the only organization where people at your command are ready to lay down their lives. So that bondage, that unity, that cooperation, cohesiveness, which we call, and the friendship which we built in army, it's a family. It's not like any other organization. We become part and parcel of each other. We know each other in and out, and we can lay down our lives for each other. And that is one thing which I like about army. Secondly, there is no political interference. We are not interfered by anyone. Thirdly, the amount of respect which army commands from the whole civil society, it's commendable. It makes you feel like a king. Sir, and what is your turning point of your life when you feel like that it's very facing situations? It's a very hard situation in your life when you join Indian Army. I do have some fond memories because in that training period they make you do everything. They make you swim, they make you run. Otherwise, I was just like any other student. And when they asked me to run 16 kilometers, during our time we used to run around 16 kilometers. So 16-kilometer run with 16 kgs of weight. It was very difficult initially. It was like as if I am running since ages. So that was a very difficult time because I was not a very good runner. I was not a good swimmer also. So when they made me jump from 10 meters, your heart comes out. So these were difficult times, but once it is over, you feel it was so good. They were such fond memories. They were so good. Like you are frightened and still you are made to jump because we just obey the orders. And these orders are basically that we don't fear anything. You become a bold person once the training is over. कि लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा मोड़ आया हो जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया हो मे बी ये एनसीसी में हो या आपके कैरियर में हो तो जो कि कभी भूलने वाला ना रहा हो या जो आप कभी भूल नहीं पाए हो। फौज आपको मौके ही इतने दे देती है कि आपका हर जो इंसिडेंट है वो ज़िंदगी के अंदर एक बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है। पर मैं आपसे थोड़ा सा बड़ा रहूँगा। 23-24 साल की उम्र में जब मैं ग्लेशियर के अंदर गया था और ग्लेशियर में मैं जिस पोस्ट पे रह रहा था वो 23,000 फुट पे थी और वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ ऑक्सीजन कम होने की वजह से 4% ऑक्सीजन है वहाँ, यहाँ पर 21% है। तो वहाँ आपको भूख नहीं लगती है और हम छोटे से 6 फुट के एरिया में 4 लोग रह रहे थे। छोटा सा बंकर था, उस बंकर को बड़ा भी किया नहीं जा सकता था क्योंकि वो दुश्मन की नज़र में आ जाएगा और दुश्मन हमारे ऊपर गोली बरसानी शुरू कर देगा। वहाँ पर हम 7 महीने रहे और 7 महीने क्योंकि -70 डिग्री टेम्परेचर होता है, -50 से -70, तो आप ना तो नहाते हो ना ही आप ब्रश कर पाते हो क्योंकि अगर आप मुंह खोलते हो तो वो ब्रश वगैरह सब चीज़ जमी होती है। आप अगर एग भी बॉयल करने जाते हो तो वो 3 से 4 घंटे एग बॉयल होने में ले लेते हैं क्योंकि वो पत्थर से भी हार्ड होते हैं। तो उस जगह पे रहते रहते हमारे जो लिम्स थे वो इस हालत में पहुंच गए थे कि डॉक्टरों ने उन्हें काटने के लिए बता दिया था। लेकिन हमारे जवानों ने हमसे वो प्यार इतना करते थे, लगाव इतना करते थे कि उन्होंने उसकी मालिश कर करके वैसलीन के साथ चाय पत्ती के पानी में डाल के उनको दोबारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के बढ़िया किया। इस तरह के और भी कई इंसिडेंट्स। ठीक है, दराज के अंदर 2021 में फिर
60 के करीब टेम्परेचर चला गया था और उस टाइम 250 गाड़ियाँ फंस गई थी जोजिला पास के पास। तो उनको रेस्क्यू करते करते ज़्यादातर वहाँ बिहार की लेबर थी, तो दुमका से आई हुई जो ग्रेफ के अंदर काम करती है, और उनके वो प्लास्टिक वाले शूज़ और जो चप्पलें होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं। वो इतनी ज़्यादा सर्दी थी और बर्फ़ के अंदर क्योंकि सारी गाड़ियाँ दब गई थी, तो उनको जब हम पैदल आ रहे थे तो वो क्रैक्स आने शुरू हो गए उनके जूतों में, और वो प्लास्टिक के लिफाफे बांध के, पॉलीथीन के लिफाफे बांध के, उसके बाद उनको हमने सही सेफ़ जगह में पहुंचाया और उनको जुराबें, उनको शूज़, सब कुछ इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड की। और इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल रहा, और सारे के सारे वो 250 के 250 बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सब बचा लिए गए। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनको आप दिमाग से नहीं निकाल पाते। वो जब इंसिडेंट्स आपको सोते वक्त या कभी ज़िंदगी में वैसे भी आ जाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दीज वर सम इंसिडेंट्स। फिर इसी तरह पोस्ट पे ऊपर थे, एक बार पाकिस्तान की शेलिंग शुरू हो गई, पर क्योंकि फ्रेश स्नो हो रखी थी तो 30 किलो का गोला आके मेरे से सिर्फ 5 मीटर दूर फटा। वैसे वो 150 गज तक, 250 गज तक सब कुछ ख़त्म कर देता है, पर क्योंकि स्नोफॉल हो रखा था तो वो गोला अंदर ही अंदर धंसता चला गया, और जब तक वो फटा तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं रह गया और हम सब के सब सुरक्षित रहे। तो इंसिडेंटों से तो भरी हुई ज़िंदगी होती है एक फ़ौजी की। तो इंसिडेंट्स तो हम आपको सुनाने लग जाएं तो कई महीने आप यहीं बैठे रहोगे। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द इंसिडेंट्स विच आई रिमेंबर एंड दे आर वेरी क्लोज टू माई लाइफ। सर हमारी जो इंडियन आर्मी है या जो भी आर्मीज़ हैं हमारी, जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए नाउअडेज़ बहुत सारे ऑप्शंस है, कैरियर ऑप्शंस, मेनी प्रोफेशंस, बट इंडियन आर्मी कैसे इन सब से डिफरेंट है? सर इसके बारे में आप अपनी कुछ राय रखना चाहेंगे? इंडियन आर्मी सबसे डिफरेंट इसलिए है कि इंडियन आर्मी आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ देती है। इंडियन आर्मी एक आपको स्टैटिक लाइफ नहीं देती है। बाकी हर प्रोफेशन में आपको रात को ही पता होता है कि आपने सुबह क्या करना है। एक डॉक्टर रोज़ सुबह उठता है, 10 मरीज़ देखता है, शाम को वापस आ जाता है। ठीक है, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड वाला 8 घंटे 9 घंटे फैक्ट्री में जाता है, 11 बजे चाय का कप पीता है, दोपहर को खाना खाता है, बाकी टाइम कंप्यूटर के आगे बैठ के डाटा कलेक्ट करता रहता है। उसको अपनी लाइफ पता है। लेकिन आर्मी वाले की लाइफ अनसर्टेन है। कब कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, कब कोई कहाँ से अटैक आ जाएगा। आप खास करके जब फील्ड एरिया के अंदर हो, जब आप दुश्मन के इलाके में हो, तो आपके लिए हर दिन अलग दिन है, वो पिछले दिन से अलग है। आपको खुद ही नहीं पता होता कि दूसरा दिन कैसे होगा। ठीक है, अचानक आर्मी शेलिंग हो जाएगी, आप उसमें ज़िंदा भी रहोगे या नहीं। तो हर दिन एडवेंचरस है। उसके अलावा आर्मी वैसे भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आप देखते रह गए अखबारों में, चाहे वो माउंटेन क्लाइंबिंग हो, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, चाहे साइक्लोन में मदद करनी हो, चाहे बोरवेल के अंदर बच्चा गिर गया उसको निकालने का काम हो, आपको हर जगह आर्मी दिखाई देगी। तो आर्मी की लाइफ तो दूसरी लाइफ्स के साथ मुकाबला ही नहीं है, उनका कोई आपस में कंपैरिजन ही नहीं है। ये बिल्कुल अलग है बाकी लाइफ से। सर आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन के जो यूथ हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे डिसिप्लिन वगैरह जो कि आजकल देखने को बहुत कम मिलता है स्टूडेंट्स में बेसिकली। सर तो आप अपनी कुछ व्यूज़ या कोई ओपिनियन जो कि या मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? मैं स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, डिसिप्लिन तो लाइफ में वैसे भी आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पढ़ाई का डिसिप्लिन है, इवन रसोई के अंदर भी डिसिप्लिन नहीं होगा तो पूरी रसोई गंदी हो जाएगी। तो डिसिप्लिन तो पार्ट एंड पार्सल आपकी लाइफ का होना चाहिए, तभी ही आपकी लाइफ आगे भी बढ़ेगी और अच्छी रहेगी। रही बात डिसिप्लिन से फ़ायदा उठाने की, तो बच्चे अगर अपना मोबाइल टाइम कम करके सोशल प्रेशर के बीच में ना आके अगर अपना टाइम लाइब्रेरियों के अंदर एक दूसरे को समझने में, आप इस कॉलेज को ही ले लो, इस कॉलेज के अंदर JNK के बच्चे आ रखे हैं, बिहार के बच्चे आ रखे हैं, इतने स्टेट्स के आ रखे हैं। अगर आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करोगे तो आप लोगों को एक दूसरे की स्टेट के बारे में पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि इनकी स्टेट में ऐसा क्या डिफरेंट है जो हमसे है, अलग है।
आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों को चाइनीज़ कह रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट वाले कैसे लगते हैं और उनका किस तरह का कल्चर है। तो एक दूसरे के साथ समय बिताओ और समय को वेस्ट मत करो, और डिसिप्लिन में रहोगे तो बाकियों को भी डिसिप्लिन में रखोगे, सोसाइटी के एक अच्छे नागरिक बनो। यही मेरा एक संदेश है हर बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे कर्नल मनजीत सिंह टाडा, जिनसे आज हमने मुलाकात की और एनसीसी के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ कि आज की पेशकश आपको काफ़ी पसंद आई हो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।